Good morning class. In the last previous lecture we have learned about the distribution of electron for first 5 elements, that is from hydrogen to boron. Now we are starting today by the very 6th element, is carbon. So 6th element is carbon. Carbon का जो भी symbol हम लिखेंगे children, symbol of carbon is only the very first letter C. Now atomic number is denoted by Z, and atomic number Z, that is equal to 6. So here when we are writing the relation between Z, E and P, that is equal to 6. Now you have idea that E is electron and P is proton. Number of electrons and number of proton. P is number of proton. So here when we talk about children, so whenever we are just going to talk about this particular number of neutrons, so we are just going to find out by number of neutrons, that is equal to A is the mass number minus P. A कार्बन का जो भी मास नंबर है वो है 12. यूनिवर्स ने एक्सेप्टेड है 12 minus 6 6. So A is nothing but A is the mass number over here, and P know that small p is denoted as a number of proton. So 6 यहाँ पे मुझे मिला है, तो यहाँ पे मुझे E मिल गया है 6, P मिल गया है 6 और N मिल गया है 6. So डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम K L distribution here also we are just going to use this particular one, K L M N. चलो K में 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो L में कितने जाएंगे 4, M और N में जाएंगे 9. That means now we just draw the schematic diagram. तो सबसे पहला हम न्यूक्लियस बनाएंगे. न्यूक्लियस इज तो पॉजिटिवली चार्ज पेयर जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं. P is equal to 6, N is equal to 6. You can write. Then we have to make 2 particular circle, and we have to denote them by K shell, and second circle with the L shell. So here in K shell how many electrons? 1 and 2, and in L shell we have 1, then 2, then 3, and then 4. So this is the schematic diagram for the very next carbon. So copy this particular one, children. This is very useful to you people. After carbon we have nitrogen. After nitrogen we have oxygen. Then we have fluorine, and then we have neon. In today's lecture we just complete 6 to 10 elements. In further we are moving to 11 to 20. So this is the distribution of electron in the particular orbit shells, P, L, M and N. If you have copied them, we are just starting with the next one, children. यहाँ पे मैं लिखूंगी 6, 7 रोल नंबर या तो atomic नंबर. रोल नंबर मैं क्यों बोल रही हूँ चिल्ड्रन, पता है हमें याद रहता है अच्छे से इजीली. रोल नंबर कैसे याद रहते ना हमें, तो नाइट्रोजन का सिंबल है N, ओके, और यहाँ पे 7 है तो उसमें एटॉमिक रोल नंबर या एटॉमिक नंबर 7, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 7. अब चलते हैं मास नंबर. यूनिवर्सली मास नंबर नाइट्रोजन का है 14 माइनस 7, तो ये हो गया 7. चलो अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं. तो L सेल में एक बढ़ाना है, और क्योंकि उसमें 7 इलेक्ट्रॉन है, यू कैन जस्ट ऐड इट 2 + 5 7. यहाँ पे 7 एटॉमिक नंबर है, 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 प्रोटॉन है. तो अब यहाँ पे चेंज क्या होगा, न्यूक्लियस में जो भी नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन है वो चेंज हो जाएंगे. 7 7, एंड L सेल में इंस्टेड ऑफ 4, नाउ यू कैन काउंट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 and 7. So this is the schematic diagram for nitrogen. So kindly copy it, children. Then we move to the next particular one, children. After nitrogen, we have to learn about the very next particular oxygen, which is very essential for us for the survival of the life. Without oxygen we can't survive. ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है, तो ऑक्सीजन को
पूरे 118 एलिमेंट्स में से इसको 8 नंबर पे रखा गया है। चिल्ड्रन, ये जो भी एटॉमिक नंबर या तो जो भी रोल नंबर एलिमेंट्स को मिले हैं वो मैंने या किसी और ने नहीं दिए हैं। Scientist has tuned and then universally IUPAC has given them arrangement according to their increasing order of atomic numbers, which you are going to learn in 10th class in the chapter number 5. So whenever we talked about this distribution of electron after nitrogen, now we'll learn about the next one, that is oxygen, children. So oxygen is very essential. अभी बहुत ज़रूरी है कोरोना पॉजिटिव पर्सन के लिए ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी हो गया है, उसके बिना इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव। रादर देन बीइंग पॉजिटिव वी हैव टू बी नेगेटिव। बोला जाता है पॉजिटिव रहो, बट दिस इज अ टाइम वेयर वी कैन से दैट बी नेगेटिव, दैट इज सेफ फॉर यू पीपल। सो प्लीज स्टे एट होम, स्टे हेल्दी, स्टे टेक द फूड विच इज देयर प्रिपेयर्ड एट होम, डोंट टेक द फूड विच इज देयर having no idea that from where it comes. So this is all what about apart from this, but now move on the track. We have this 8 oxygen और is very essential ना, ऑक्सीजन गया तो इंसान चला जाता है ऊपर, तो 8 है, तो यहाँ पे रिलेशन में लिखेंगे z is equal to E, that is equal to B, that is equal to 8। अब ऑक्सीजन के लिए मास नंबर फिक्स्ड A वो है 16, ठीक है। 16 माइनस 8 कितना हो गया 8, तो यहाँ पे K L में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 6, तो आप ऐड कर सकते हो, देख सकते हो मैडम सही पढ़ा रहे हैं, मैडम गलत जा रहे हैं। दैट इज 2 + 6 8, तो दैट मीन्स कि यहाँ पे तो है 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो मैंने यहाँ पे बढ़ा दिया है इलेक्ट्रॉन, यू कैन काउंट इट 1 2 3 4 5 6 7 and 8 electrons हैं। प्रोटॉन 8, न्यूट्रॉन 8। So this is the particular 8 element ऑक्सीजन। चिल्ड्रन, कभी भी उठ के पूछे तो आपको आना चाहिए कि मैडम ने जो पढ़ा है मुझे आया है कि नहीं, तो उसके लिए आपको सेल्फ स्टडी भी करना ही पड़ेगा, है ना। खाना जब भी आपको मिलता है थाली में परोसा जाता है तो डायरेक्टली मुंह में आता है नहीं, यू हैव टू पुट अ पॉट, यू हैव टू जस्ट क्लोज योर फिंगर एंड देन यू हैव टू टेक द फूड बाय यूजिंग योर फिंगर, ठीक है। उसी तरह मैडम तो पढ़ा रहा है, मैडम तो बोर्ड पे लिख रहा है, सेल्फ स्टडी आपको भी करनी पड़ेगी। यू हैव टू ऑल्सो बी कॉन्शियस विथ वॉट एवर इज देयर जस्ट रिटन ऑन द बोर्ड। मैडम क्या लिख रहे हैं, मैडम क्यों लिख रहे हैं, मैडम ने किस लिए लिखा, मैडम ने कैसे अरेंज किया। सो फॉर दैट यू टू सी द वीडियो एंड देन इफ यू हैव डाउट यू कैन जस्ट गिव द कमेंट्स दैट मैडम वी आर नॉट गेटिंग दिस पर्टिकुलर टॉपिक। सो इन द वेरी नेक्स्ट और whatever the time we are getting, we are just giving the solution for that also, children. But kindly see the video so you have idea that what you have learned, what you have just gone through, and from that how much you have learned. आपने उसमें से कितना सीखा है। मैडम ने इसमें 1 to 8 एलिमेंट सिखा दिए हैं, तो क्या मैं 6 नंबर के एलिमेंट के लिए स्कीमेटिक डायग्राम अपने आप ड्रॉ कर सकता हूँ कि नहीं, वो आपके ऊपर डिपेंड है, पर कब होगा जब आप उसके लिए सेल्फ स्टडी करोगे तब। सो दैट इज ऑल अबाउट व्हाट, दैट इज अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर ऑक्सीजन। अगर ये लिख लिया है तो हम 9th वाले एलिमेंट पे चलते हैं। 9th वाला एलिमेंट की अगर बात करते हैं तो वो है फ्लोराइन, ठीक है। फ्लोरीन नॉन मेटल है एलिमेंट में, ऑक्सीजन इज ऑल्सो नॉन मेटल, नाइट्रोजन भी नॉन मेटल है। तो मतलब 5 के ऊपर जो भी है, 5 के नीचे जो भी हैं वो सारे, 4 के नीचे जो भी सारे हैं वो कैसे है, नॉन मेटल है। नॉन मेटल की प्रॉपर्टी हमें पता है कि वो नॉन मैलिएबल है, नॉन डक्टाइल है, या नॉन सोनोरस है, डल है नेचर में, वेरी सॉफ्ट है, इन द गैसियस फॉर्म है, सॉलिड फॉर्म में भी है और लिक्विड फॉर्म में भी है। मेनली दे एग्जिस्ट इन द गैसियस फॉर्म। सो व्हेनेवर आई टॉक्ड अबाउट द 9th एलिमेंट, it is fluorine. So now we move to the 9th one. 9th one is fluorine. Okay children. So fluorine का सिंबल हो गया कैपिटल F। अब 9 है तो यहाँ पे उसका Z है, तो नंबर भी हम क्या लिख देंगे 9। So Z is equal to E, that is equal to P. So वो भी क्या हो गया 9। अब उसका मास नंबर क्या है, मास नंबर क्या है उसका, so mass number whenever we talked about, so mass number is whenever we talked about, so it is 19. When we talked about fluorine,
फ्लोराइन के पास एटॉमिक नंबर 9 है, या तो उसका रोल नंबर बोल दो 9, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 9 हो गए, प्रोटॉन 9 हो गए। अब मास नंबर की बात करते हैं तो उसके पास मास नंबर है 19 - 9, उसके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो गए 10। ठीक है चिल्ड्रन, सी ये बहुत ज़रूरी है, दिस इज वेरी एसेंशियल टू लर्न हाउ टू फाइंड आउट, बिकॉज ये टेक्स्ट बुक में अल्टरनेटिवली ऊपर नीचे दिया है, मैंने पहले सिखा दिया है, क्योंकि ये नहीं सीखोगे तो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करोगे। एटम में, न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहते हैं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन बताना बहुत ज़रूरी है, तो वो कैसे बताओगे, इसीलिए मैंने पहले सिखा दिया है। मास नंबर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। In the next particular lecture, I'll just give the particular mass number of each first 20 elements, or either in this video only I am just going to add that mass number of first 1 to 10 एलिमेंट्स। ठीक है, तो आपको आइडिया रहेगा कि हाँ मास नंबर कितना है, तो उसमें से मुझे खाली नंबर ऑफ प्रोटॉन ही माइनस करने हैं, तो मुझे क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो ये हो गया किसके लिए, फ्लोराइन के लिए। और फ्लोराइन के लिए ये नहीं लेना, क्या लेना है, ये तो 2 + 7। सी बहुत सारे चिल्ड्रन इसमें गलती करते हैं, ये फिल कर देते हैं, बट वी हैव टू फिल दिस ई। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम डाल रहे हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को नहीं डाल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोटॉन 10 हो गए, न्यूट्रॉन 9 हो गया, और 8 है तो अभी और एक बढ़ गया 9। तो ये स्कीमेटिक डायग्राम हो गया किसका, फ्लोराइन का चिल्ड्रन। सो यू कैन कॉपी इट फॉर फ्लोराइन, एंड आई एम राइटिंग वन साइड about the atomic number, so you can also copy the atomic number, or sorry, mass number for first to 20 elements. Today I am writing for hydrogen 1 to 10 elements. हाइड्रोजन का 1 यूनिफाइड, U stands for unified, then हीलियम का है 4, लिथियम का है 7 यूनिफाइड मास, बेरिलियम का है 9 यूनिफाइड मास, बोरोन का है 10 unified mass, carbon is having 12, nitrogen is having 17, oxygen is having, nitrogen is having 14, 16, fluorine 19 unified mass, 10th one is neon, इसका सिंबल Ne, इसका है 20 unified mass। सो आप ये भी कॉपी कर लो तो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा, फाइंड आउट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। लास्ट बचा है, देन 11 से 20 टुमारो, और इन द नेक्स्ट पर्टिकुलर लेक्चर वी आर डूइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में केशन एंसर और आंसर में इलेक्ट्रॉन को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, ना कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, ये इसको अंदर डाल देते हैं, 2 और 8 कर देंगे, तो ऐसा नहीं होगा, हमें लेना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट। सो इफ यू हैव कॉपीड दिस, देन द वेरी लास्ट वन फॉर टुडे वी आर डूइंग 10, रोल नंबर 10, और एटॉमिक नंबर 10 नियॉन। नियॉन का सिंबल है फर्स्ट 2 लेटर्स Ne, जिसका एटॉमिक नंबर Z है 10, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हो गए 10। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया इसका मास नंबर 20, सो 20 - 10, तो यहाँ पे हो गया इसके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन N = 10। ठीक है, सो E कितना है 10, तो हम इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 8। और इसके बारे में यूनिक चीज बताती हूँ, है ना, जब भी लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो तो उसे बोलेंगे दे आर फुलफिल्ड ऑर्बिटल्स और सेल्स, और नियॉन गैस को बोला जाता है नोबेल गैस, या तो उसे बोला जाता है अनरिएक्टिव गैस। उसकी वैलेंसी होगी 0। क्यों 0? वो अपने आप में से किसी को भी इलेक्ट्रॉन ना तो देगा ना तो लेगा, वो सबको अपने जैसा बनाने की कोशिश करेगा। अगर कार्बन के पास उसकी लास्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है तो वो कार्बन को क्या बोलेगा, तो 4 इलेक्ट्रॉन ले ले, या तो 4 इलेक्ट्रॉन घुमा के हीलियम जैसा बन जा, या तो 4 इलेक्ट्रॉन लेके वो तो मेरे जैसा बन जा। ठीक है, वी आर हैविंग रोल मॉडल्स।
किसी की कटरीना कैफ होगी, किसी का सैफ अली खान होगा, व्हाटएवर। उसी तरह जो भी नोबेल गैस हैं वैसे ही whenever we talk about the valency, this is the very next topic which we will talk about, but ये मैं अभी बोल रही हूँ कि this is the particular one which we can say about that नियर नोबेल गैस है। सभी पर्टिकुलर गैस या तो इलेक्ट्रॉन लॉस करके या तो गेन करके नोबेल गैस जैसा बनना चाहेंगे, क्योंकि उनके अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन्स है वो फुलफिल है, ना वो इलेक्ट्रॉन किसी को देंगे, ना लेंगे, ना गेन करेंगे, ना लॉस करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे एंड द नेक्स्ट पर्टिकुलर लेक्चर वी स्टार्ट विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेस्ड 11 to 20 एलिमेंट्स एंड द नेक्स्ट टॉपिक वैलेंसी। थैंक यू चिल्ड्रन।